a shadow to my light. Did you feel us? Another star. Students of class 3rd, this is your Farat ma'am who welcome you all to your English class. So children, this is the part 2. In part 2 we will discuss the exercises. In part 1 I have explained the story. You can check it on my channel. Okay, पार्ट 1 में मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है. आप चैनल मेरे चैनल पर जाकर ढूंढ सकते हो. क्लास 3 रूट्स एंड विंग्स करके एक प्लेलिस्ट में होगा, आप वहाँ से सारे वीडियोस देख सकते हो क्लास 3rd वाले. फाइन. एंड दिस इज़ द पार्ट 2. इट मीन्स कि जो पार्ट 1 में उसमें एक्सप्लेन किया मैंने स्टोरी, एंड पार्ट 2 में मैं एक्सरसाइजेज डिस्कस करूँगी. ऑल राइट, ओके. सो शैल वी मूव टू द एक्सरसाइजेज. नाउ मूव टू द एक्सरसाइजेज. Come to the, here is the question answer given. See, read and understand. This is the question answer given. Question number A, answer the following questions orally. Here you have to answer it orally, but if you want to write in your notebook, then you can write it also. Okay, I will share you the answers in the written form. Got it? You can pause the video. आप वीडियो pause करके देख सकते हो क्वेश्चन आंसर और लिख भी सकते हो. All right? Okay. Now let me show you the answers. In the question number 1, it is asking, give the full names of Wright brothers. Then your answer will be Wilbur Wright and Orville Wright. Okay? Okay. Now move to the question number 2. What did the Wright brothers invent? Then your in question number 2 it is asking, जो Wright brothers थे, मैंने आपको बताया था ना, उन दोनों ब्रदर्स को इकट्ठे क्या कहा जाता था? राइट ब्रदर्स. ओके, विल्बर राइट को एंड ऑरविल राइट को एक नाम दे दिया गया है. देन दे वर कॉल्ड एज राइट ब्रदर्स. तो हेयर इट इज आस्किंग दैट व्हाट डिड दे इन्वेंट, उन्होंने क्या आविष्कार किया था? देन योर आंसर विल बी राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड एन एरोप्लेन. या यू कैन राइट हियर द फर्स्ट एरोप्लेन आल्सो एज योर विश. ओके, इट इज़ आल्सो करेक्ट. You can write here Wright brothers invented an aeroplane, or you can write Wright brothers invented the first aeroplane. Both will be correct. Okay, now move to the next one. How do birds use their wings to turn and control their speed? Here it is asking that जो birds है वो अपनी wings को कैसे turn करते हैं और अपनी speed को control करते हैं. Then your answer will be birds flapped their wings to turn and control their speed. ओके, जो बर्ड्स है अपनी जो विंग्स को क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं, जिससे हम हिंदी में कहते हैं फड़फड़ाना, है ना. तो ऊपर नीचे करने की जो मूवमेंट होती है विंग्स की, उससे ही क्या करती है? बर्ड टर्न करती है, एंड देन दे यूज टू कंट्रोल देयर स्पीड आल्सो. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द राइट ब्रदर्स डिज़ाइन अ मोटर? हेयर इट इज आस्किंग दैट जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने मोटर को क्यों डिज़ाइन किया? देन योर आंसर विल बी Wright brothers designed a motor so that the flight can be lasted for a long time. ताकि जो उनकी जो फ्लाइट थी, जो अपने एयरक्राफ्ट को वो फ्लाई कर रहे थे, वो थोड़ा ज़्यादा देर तक फ्लाई हो सके, है ना. ये शॉर्ट टाइम के लिए ना हो, ये लॉन्ग टाइम के लिए हो जाए. राइट, ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाउ लॉन्ग डिड द फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट फ्लाई? जो फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट था वो कितने देर तक फ्लाई किया था? इट इज आस्किंग. Okay, then your answer will be the first powered aircraft flew for 12 seconds. Okay, it was 12 seconds. Done. Now move to the next one. In question number B, it is written fill in the blanks with suitable words. Here blanks are given and you have to fill it. Okay, you have to fill them with the appropriate words. See the first one. The first aircraft designed by the Wright brothers was flown as a It was. Then your answer will be kite. It was flown as a kite. जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट था वो कैसे उसको ऐसा डिज़ाइन किया गया था, वो किस तरह से उड़ रहा था? मानो एज अ काइट, वो काइट की तरह से उड़ाया गया था. देन हेयर यू विल राइट इन द फर्स्ट वन इट विल बी काइट, KITE. ओके. इन द क्वेश्चन नंबर 2 इट इज आस्किंग द ब्लैंक स्पेंट आवर्स ऑब्जर्विंग ब्लैंक इन फ्लाइट. देन हु वॉज ऑब्जर्विंग? Who were observing? Then Wright brothers ना. Then here you will write Wright brothers. अगर आपको देख कर लिखना है, you can pause the video also. आप वीडियो pause करके लिख सकते हो. WRIGHT Wright, BROTHERS brothers. This is B. Okay. And in the अगर if it is not clear ना, then just listen my voice. अगर clear नहीं है आपको words, क्योंकि यहाँ मुझे तो वो पेन यूज़ करके लिखना पड़ रहा है,
अगर क्लियर नहीं है कोई भी लेटर या कुछ भी तो आप मेरी वॉइस को सुनो आप एंड देन यू कैच दैट वर्ड. Okay, and in the next blank you will write what? Birds. Here you will write birds, birds, birds. Okay, now move to the next one. Now come to the third one. In the third one it is written, the weight of the biggest glider ever flown in 1901 was. in 1901 में जो glider, जो biggest glider को जो fly किया गया था, what was that weight? Then it was 100 pound. Okay, then here you will write 100 pound. 100 pound d. Wait, it is not clear now. 100 and then pound. All right. Okay, in the fourth one, the Wright brothers built to launch the flyer. What they built? Then they built a downhill track. So here you will write DOWNHILL, downhill, TRACK, track. Okay. In the fifth one, the first motor powered aeroplane was named. It was named as Flyer. FLYER, Flyer. The sixth, the first motor powered aeroplane was flown by Wright brothers. Then in the last you will write WR. Is it clear? Wait, let me write it here. WRI. Sorry. Wait, let me erase all this. अगर आपके छूट रखे ना तो आप ना वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड करके पॉज कर लो आप, ठीक है? बाकी फिर आ जाएंगे आंसर्स. WRIGHT, राइट. ये मत सोचना कि चला गया, वो गायब हो गया. आप पीछे कर लो वीडियो को. It will be S, Wright brothers. Okay. Now come to the question number C. Sorry. Yeah. In question number C, tick the correct option. See, there are 4 options given. Okay, and you have to tick the correct one. Fine. In the question number C, come to the first one. The Wright brothers spent hours together observing. What they observed? They observed the birds now. So your answer will be option number B. So you will tick it here. In the second one, the flyer was first flown by 12 seconds in 1903. Okay, then your answer will be option number C. Done? All right. Now move to the question number D. Answer the following questions. Okay. Question number D. Answer the following questions. Let me show you. Yeah, here it is. In question number 1, it is asking, why did the Wright brothers arc the tips of the wings of their first aircraft? Then your answer will be, the Wright brothers arced the tips of the wings of their first aircraft to control its balance and movement. Okay. If you want to write, then just pause the video. जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, वीडियो पॉज कर लो आप, then write it from here. Okay. Now move to the question number 2. Why was the shape of the glider wings changed? जो ग्लाइडर का जो शेप था, ग्लाइडर विंग्स का जो शेप था वो चेंज क्यों हुआ था? देन योर आंसर विल बी, द शेप ऑफ द ग्लाइडर विंग्स वाज चेंज टू फ्लाई इट सक्सेसफुली, ताकि उसे सक्सेसफुली उड़ाया जा सके. ऑल राइट, कम टू द थर्ड वन. वेयर वॉज अ बिग फुल साइज ग्लाइडर टेस्टेड? यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट प्लेस वेयर इट वॉज टेस्टेड. देन योर आंसर विल बी, a big full-sized glider was tested at Kitty Hawk in North Carolina. Okay. Now move to the fourth one. State one problem that occurred in the glider of the Wright brothers in 1901. Then your answer will be, you can write that one problem. The wings could not lift it high enough and sometimes the aeroplane spun out of the control. Okay. Now move to the next one. Question number 5. How was the movable tail of the aircraft useful? Then your answer will be, a movable tail of the aircraft was useful as it helped to balance the craft. Okay, done. This was the last question. So now move to the next one. Now in the next one it is given, think and answer. Children, this one you should do it by yourself, but still I'm helping you here. I'm providing answer of this question also. See, how did love for adventure and belief in themselves
helped the Wright brothers to invent the aeroplane? Then your answer will be the love for adventure and belief in themselves helped the Wright brothers not to lose the hope and made them able to try and try again and finally got the success to invent the aeroplane. So this is your answer. Okay, just pause the video and you can write it in your notebook also. So think and answer we have done. Okay, now moving to the grammar spotlight. Here it is given collective nouns. Children, on my channel you can check it from there that there is a video of nouns. Noun का एक वीडियो मैंने बना रखा है, मैंने उसमें पढ़ा रखा है what is noun and what are the kinds of nouns. So as you all know that there are 5 kinds of noun, right? And collective noun is one of them. Okay, so हम यहाँ थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि यहाँ अगर हमने इसे डिटेल्स में पढ़ाया देन वीडियो लंबी हो जाएगी. ओके, सो सी व्हाट इज कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. किसी भी ग्रुप को अगर लोग हैं, अगर वो एक से ज़्यादा लोग वहाँ पर हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएगी, मतलब कि इकट्ठे होना. ओके, और उनको एक नाम दे दी जाती है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. ओके, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल इज देयर देन देयर विल बी कॉल्ड एज क्राउड. दैट विल बी कॉल्ड एज क्राउड. अ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर क्लास है तो उसे क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं. अ ग्रुप ऑफ, जैसे कि आप लोग जहाँ बैठते हो सारे स्टूडेंट्स एक जगह बैठते हो तो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड क्लास कहलाता है ना. अ ग्रुप ऑफ पुलिस मैन देन पुलिस. अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एंड देयर ऑफिसर्स दे आर कॉल्ड एज आर्मी. अ ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिंग एज जजेस देन इट इज कॉल्ड एज ज्यूरी. ओके ओके, सो ये रहा आपका कलेक्टिव नाउन. इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे दिया गया आपको. क्वेश्चन नंबर ए, राइट कलेक्टिव नाउन्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन. सी द फर्स्ट वन इज डन. ग्रुप ऑफ चेयर टेबल एंड सोफा दे आर कॉल्ड एज फर्नीचर. उसे हम क्या कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं. ओके, नाउ इन द सेकेंड वन, ग्रुप ऑफ स्पून फोर्क एंड नाइफ. इसके कलेक्टिव नाउन, इसका क्या कलेक्टिव नाउन है, उसका क्या नेम है, दैट इज कॉल्ड एज कटलरी. सो हियर यू विल राइट कटलरी, CUTLERY, कटलरी. ओके, सेकेंड में. द थर्ड वन, कलेक्टिव नाउन ऑफ शर्ट, ट्राउजर्स एंड स्कर्ट, इट इज कॉल्ड एज क्लोथ्स. इसे हम क्या कहते हैं, क्लोथ्स कहते हैं. सो हियर यू विल राइट CLOTHES. दिस इज L, क्लोथ्स. ओके, इन द फोर्थ वन, कलेक्टिव नाउन ऑफ पेन, पेंसिल, इरेजर एंड पेपर इज कॉल्ड स्टेशनरी. It is called as stationery. STATIONARY, stationery. This is the Y. Okay. A collection of books, that is called as library. Here it will be LIBRARY. अगर वर्ड्स क्लियर नहीं है, अगर नहीं दिख रहा है आपको, देन जस्ट लिसन टू माई वॉइस. आप मेरी आवाज़ पर फोकस करो, मैं एक एक करके पढ़ रही हूँ. ओके. In the sixth one, a number of players put together, then they are called as team. Collective noun of player is called team. TEAM, team. A collection of flowers, that is called as bouquet. Here it will be BOUQUET, bouquet. Sorry, it is not visible. Let me write it again. BOUQUET, bouquet. Okay, all right. Okay. Now move to the next one. Countable noun is given here. Countable and uncountable nouns. अब हम countable and uncountable किसे कहते हैं. Nouns which can be counted is called as countable, और which can't be counted that is called as uncountable. जिसे आप गिन सकते हो वो आपका countable कहलाएगा, और जिसे आप गिन नहीं सकते हो वो आपका uncountable कहलाएगा. All right. Countable क्या है, there can be singular as well as plural. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं. बट अनकाउंटेबल क्या है, वो हमेशा प्लूरल रहेंगे. ओके ओके, सो कम हियर. इन क्वेश्चन नंबर बी, आइडेंटिफाई द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. आइडेंटिफाई द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स एंड पुट देम इन द राइट कॉलम्स. इन क्वेश्चन नंबर बी, आप सी अ बॉक्स गिवन, देयर आर सम नाउन्स, और आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज़ द काउंटेबल एंड विच वन इज़ द अनकाउंटेबल. ओके, कॉलम्स आर गिवन फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल एंड यू हैव टू पुट देम ऑन द राइट प्लेस. ऑयल, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो, नो. सो इट विल बी योर अनकाउंटेबल नाउन. तो आप ऑयल को कहाँ लिखोगे, अनकाउंटेबल नाउन वाले कॉलम में लिखोगे, OIL, ऑयल. ओके, वेट,
वो तो हेयर बॉक्स दिख ही नहीं रही है. Okay, now it is visible. Oil will be written here, OIL, oil. Pan, yes, you can count the pan. कितने pan है? 1 2 3. तो ये आ जाएगा आपका काउंटेबल में. स्कूल, हाँ आप काउंट कर सकते हो. अगेन इट विल बी इन काउंटेबल नाउन. टी, नो यू कांट काउंट इट, तो टी आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा. बटर, नहीं आप काउंट नहीं कर सकते हो. आप उसका मेज़र कर सकते हो, काउंट नहीं कर सकते हो. बटर. जैम, अगेन इट विल बी अनकाउंटेबल. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है. जूस, अगेन इट विल बी अनकाउंटेबल. जूस विल बी. सिटी, येस यू कैन काउंट, तो ये आ जाएगा आपका काउंटेबल में. सिटी. वुमेन, या यू कैन काउंट वुमेन, कितनी औरतें हैं. टीचर, ऑब्वियसली आप काउंट कर सकते हो, तो टीचर भी आपका काउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है. ये इसमें काउंटेबल में टीचर. फाइन, ये हो गए आपके. ओके, अगर क्लियर नहीं है तो मेरी वॉइस को आप सुनो, इट विल बी क्लियर. ओके, मेरी आवाज़ सुनो, मैंने कौन से कहाँ बोला है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. नंबर. ओके, देखो नंबर क्या है, सिंगुलर एंड प्लूरल जो आप पढ़ते हो ना, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना, तो आप कैसे करते हो. किसी में क्या करते हो, आप एस ऐड कर देते हो, किसी में ई एस ऐड कर देते हो, किसी में आई ई एस ऐड कर देते हो, है ना. तो ये कैसे होता है, किसी किसी में क्या होता है, एस ई एस ऐड करना होगा. ओके, और किसी किसी में आपको आई ई एस. तो आई ई एस वाले क्या होते हैं, वो कब करते हैं, हम जब हमें वाई को रिप्लेस करना होता है. अगर किसी वर्ड के लास्ट में वाई है तो हम उसे रिप्लेस करते हैं आई ई एस से. इफ़ यू हैव टू मेक देम प्लूरल देन ओनली, जब उसे प्लूरल बनाना है तब. ओके, STORY स्टोरी मतलब कहानी, एंड STOREY मीन्स व्हाट, इट मीन्स फ्लैट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है. बिल्डिंग जो होती है ना उसके स्टोरी कहते हैं, जिसमें फ्लैट फ्लैट होते हैं ना वो वाले. तो स्टोरी जो कहानी वाली हुई ना, उसमें हम क्या करेंगे, वाई को रिप्लेस कर देते हैं. बट जो ये वाली सेकंड वाले में जो दिया है ना, उसमें हम नहीं रिप्लेस करते, वी यूज़ ओनली एड, सॉरी वी यूज़ एस देयर. ओके, वी एड एस देयर. सो हियर इट विल बी STORIES stories, and it will be STOREYS stories. Okay, third one biography, then it will be biographies, IES, y will be replaced, BIOGRAPHIES biographies. Okay, थर्ड हो गए. फोर्थ चैप्टर, तो चैप्टर का हो जाएगा चैप्टर्स, यू विल एड एस. CHAPTERS, CHAPTERS. just listen to my voice because here it is not clear. okay, grade, ग्रेड में हम एस ऐड कर देंगे, इट विल बी, मैं नीचे लिख दे रही हूँ ग्रेड का, GRADES ग्रेड्स. ओके, बेबी, तो बेबी का हो जाएगा BABIES बेबीज, वाई विल बी रिप्लेस्ड विथ IES. ऑल राइट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जेंडर. जेंडर मीन्स व्हाट, आपने पढ़ा होगा ना, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. हाँ, तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. सेम वी विल स्टडी हियर. ऑल राइट. अगर मेल है तो उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर. इफ़ इट इज़ फीमेल देन इट विल बी कॉल्ड एज फेमिनिन जेंडर. कॉमन, जैसे स्टूडेंट्स जिसमें गर्ल्स बॉयज़ बोथ दोनों आ रहे हैं, मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो उसे कह देते हैं कॉमन जेंडर. ओके, फाइन. जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में क्या क्या बॉयज़ को कुछ और बोलते हैं और गर्ल्स को कुछ और बोलते हैं, नहीं, चिल्ड्रेन मीन्स दोनों आ रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज कॉमन जेंडर. ऑल राइट. सो आपको यहाँ रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करना है, एंड यू हैव टू पुट इट हियर विच वन इज द मैस्कुलिन एंड विच वन इज द फेमिनिन एंड विच वन इज द कॉमन जेंडर. ओके, सो डू इट. सो फर्स्ट वन इज फादर. फादर इज मेल, so it will be masculine gender. So here you will write masculine, MASCULINE, masculine. ओके चिल्ड्रन, मैं यहाँ क्या करूँगी, मैस्कुलिन का M लिखूँगी, फेमिनिन का F लिखूँगी और कॉमन का C लिखूँगी. आप लेकिन फुल लिखोगे. ओके, बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच स्पेस, दैट्स वाई आई वॉन्ट बी एबल टू राइट हियर. Second one is the children. Children means what? Both male and female, both girls and boys. So it will be what? That will be common gender. So here I'm writing here C. You can also write use the first letter, no issue. Man, man is what? That is male. So it will be masculine. तो M हो जाएगा. Woman, female.
इट मीन्स कि फेमिनिन जेंडर, तो एफ हो जाएगा. पीपल, इट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल, देन इट विल बी कॉमन जेंडर, तो सी हो जाएगा. कजन्स मीन्स चाहे वो कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर इज़ रॉन्ग. ओके, ऐसा नहीं कहते हम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ब्रदर हो या सिस्टर हो, हमें सबको क्या करना होता है, सभी को कज़न कहते हैं हम. सो इट विल बी कॉमन जेंडर. ये मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं होता है, इट इज़ योर कॉमन जेंडर. ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर, नो, इट्स रॉन्ग. ओके, so we have done. Okay, now spell well. Here it is. Tick the correct anagram. What is anagram? See, suppose some word is there, okay, and you have to rearrange those words and you have to form a new word. कोई word दे दिया गया और उससे आप new word बनाते हो, तो वो क्या बन जाता है आपका, that is called as anagram कहते हैं उसे. जैसे कि time, TIME, टाइम में जितने लेटर्स हैं, जैसे टी है, आई है, एम है, ई है, उन्हीं लेटर्स को आपको यूज़ करके एक न्यू वर्ड बनाना है. एंड दैट शुड बी मीनिंगफुल. ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया हमने, नहीं, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसके मीनिंग निकलने चाहिए. तो उसका हमने बना दिया आइटम, है ना. लिसन से बन गया साइलेंट. सारे वही लेटर को यूज़ करना, आपको बस आगे पीछे आप कर सकते हो. यू हैव टू जस्ट रीअरेंज. तो फर्स्ट में देखो आप ईयर को क्या, ईयर से क्या बना सकते हो आप, तो आर बना सकते हो, ARE, आर बन जाएगा, राइट. तो ARE, आर कर दोगे आप, ये वाली, ओके. एंड यू हैव टू राइट इट हियर. आप यहाँ लिख दोगे, मैं टिक कर रही हूँ, फाइन. पाम से बन जाएगा आपका लैम्प, बन जाएगा. चिन से बन जाएगा आपका इंच. वेस्ट से बन जाएगा आपका वेट्स. फेस से बन जाएगा कैफे. नी से बन जाएगा आपका कीन. ओके, डन. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. Word power is given. All right. See, synonyms. In the word power it is given synonyms किसे कहते हैं? Those words which are having same meaning. कोई दो वर्ड है, उनके सेम मीनिंग है, that they are called as synonyms. Fine. जैसे कि tall मतलब भी लंबा, long मतलब भी लंबा, तो then they are called word synonyms. और अगर उसके अपोजिट हो जाते हैं, then they are called as antonyms. जो भी यहाँ हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, synonyms पढ़ना है. इट मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम हो. जैसे फर्स्ट वन इज गिवन ऑब्जर्विंग. तो ऑब्जर्विंग का जो मीनिंग है वो किससे मैच करता हो, तो नोटिसिंग से. ओके, ऑब्जर्विंग मतलब क्या होता है, नोटिसिंग. ऑब्जर्व मतलब नोटिस करना. तो आप यहाँ क्या करोगे, वन को मैच करोगे सी से. तो मैं यहाँ मैच नहीं कर रही हूँ, बस ऑप्शन लिख दे रही हूँ, फर्स्ट का सी. चेंज का आल्टर मतलब ये होता है चेंज करना. हियर विल बी ए, दिस इज ए. सुटेबल का हो जाएगा आपका बी. अप्रोप्रिएट बी. रिमोट इट विल बी डी. फार अवे. ओके, अगर नहीं क्लियर तो मैं एक बार मैच भी कर देती हूँ, आप देख लो. फर्स्ट का सी से मैच करोगे आप, 2 का ए से मैच करोगे आप, 3 का बी से मैच करोगे आप, 4 का डी से मैच करोगे आप. दैट्स ऑल. सो चिल्ड्रेन, we have done the exercises. All right. Okay, now hope you would understood this topic. You would have not any problem. Okay, if you're having any problem, then just comment me down. So that's all for today. Have a good day. Bye bye. Take care and be safe.